First of all, I'm really glad to be here, to be a part of this gathering. As Natali has also pointed out, this is very relevant and very timely. These are the debates that we need to have, and especially with the young minds that we have in the room. I would like to start with a quote that I had. I'm sorry, I had prepared an entire Sure, go ahead. but I'll not take Sorry, much of हम the time. आपको वो नहीं बना नहीं, नहीं, सकते, it's वरना perfectly fine, it's perfectly fine. presentation के लिए So, वो this was a quote which was given by one of the brightest minds, Isaac Asimov, around 20 years ago. And he said that the saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom. Which means on a daily basis, something new is happening in the field of science. But is it also corresponding with the society or not? आपने जो बात की कि क्या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग या दुनिया की पॉलिसी मेकिंग कॉरस्पॉन्ड करती है विद द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ साइंस और नॉट, और उसमें इशू क्या है, क्यों नहीं कॉरस्पॉन्ड करती? तो आई थिंक सबसे पहले इशू जो इससे हमें मिलता है वो ये है कि जनरल अवेयरनेस आपको टेक्नोलॉजी पे कम मिलता है। जैसे डॉक्टर साहब ही इज एन एक्सपर्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई आल्सो हैव अ बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो आई आल्सो अंडरस्टैंड सम ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू एआई. Artificial intelligence has become a buzzword of the market right now, especially since the explosion of ChatGPT in 2022. आज market में everything is being sold as AI, but I would like to refer to a quote by Harari, who says that not everything which is being sold to you as AI is AI. वो example देते हैं, if you have a coffee machine at home which makes coffee upon pressing the button, it may be an automated machine, but it may not be an AI machine. So it's doing exactly what it's programmed to do. AI के principles से different है. कोई भी machine, कोई भी system जो pre-programmed है, it's not AI. But if that same coffee machine on one fine day without you prompting, without you pressing any button, turns on and tells you, hey, I've been looking at you for quite some time and I can see that your mood is down. I can see that you're not feeling good today based on your levels of blood pressure, on the level of your body temperature and every other thing that I've learned about you. Based on this learning, I'm suggesting a new type of coffee for you, which is called Bestpresso. It's my own formula. I have created this coffee for you and I know that you'll like it. So if you have a coffee machine of that sort, then it could be called an AI coffee machine. But if you have a coffee machine which can make coffee by pressing a button, it's not an AI coffee machine. So AI works on the principle of machine learning. Machine learning को जब develop किया गया था, it was modeled on the basis of the same principle which human learning has. Every one of us have learned languages, society, social values through our education, through our family system. लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो exact moment कौन सा था जब हमने एप्पल का नाम लर्न किया, हमने सेब का नाम लर्न किया, हमने पानी को पानी कहना सीखा. सेम इज द इशू विद एआई. जो ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम की आप बात कर रहे थे, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम होता क्या है? ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम ये होता है कि यू हैव 3 steps of machine learning. First is to develop an algorithm of machine learning. Second is to feed it data, big data on which it is trained, and third is to deploy the machine learning. जब आप डेटा उसको देने लग जाते हैं, वो किस लॉजिक पे अपने रिजल्ट्स को ड्रॉ कर रहा है, वो किस बेसिस पे अपने आउटपुट्स तक पहुंच रहा है, इवन द क्रिएटर्स कैन नॉट जज दैट, क्योंकि उसके अंदर फिर उसके अपने न्यूरल नेटवर्क्स बनने लग जाते हैं, सिमिलर टू अ माइंड ऑफ अ चाइल्ड और माइंड ऑफ अ एडल्ट. बात हो रही थी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की रेस हैज ऑलरेडी बिगन. इफ यू ओनली लुक एट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एट विच एआई इज बीइंग डेवलप्ड राइट नाउ, it took AI or ChatGPTs to go from displaying the intelligence of a preschooler in ChatGPT 2 to displaying the intelligence of a college graduate in ChatGPT 4 in just 4 years. 4 सालों के अंदर ChatGPT अपनी इंटेलिजेंस को प्रीस्कूलर से कॉलेज ग्रेजुएट तक ले गया. आज का जो ChatGPT 4 है या DeepSeek आ गया, अगर उसकी इंटेलिजेंस को आप ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ इक्वेट करें, तब तो वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के उसमें इतना इसको आप इक्वेट कर सकते हैं. It is because of the order of magnitude at which it is being developed. There is a report called Situational Awareness by an open AI researcher, Leopold. It's his prediction कि 2027 तक, 2027 तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मार्केट में डिप्लॉय हो जाएगा. देयर ऑलरेडी जो मशीन्स के साथ काम करना जानते हैं, और एक फार्मर जो कि खेतों में ट्रैक्टर पे काम करता है, उसके लिए उसको ट्रेन करना
कि वो फैक्ट्री में आके मशीन के साथ काम करे आसान है, बट आज का प्रॉब्लम क्या है? आज का प्रॉब्लम ये है कि नाउ वी हैव अ मशीन विच कैन कम्पीट विद अस इन द थिंकिंग डोमेन। हमारी सोचने समझने की सलाहियत ही एक ऐसी सलाहियत थी विच मेड अस डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द एनिमल ऑन दिस प्लैनेट। सिर्फ और सिर्फ इसी कैपेबिलिटी की वजह से वी वर एबल टू कोऑपरेट इन लार्ज ग्रुप्स। इस तरह से आज हम आप बैठे हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर। बट इमेजिन फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज एन एंटिटी which is perfectly capable of doing that, and not only doing that better than us, but surpassing us in terms of its computational power, in terms of its processing power. Imagine what that can do to us. So this is going to disrupt all the social, political, and defense realities that we have in place right now. तो ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम वाली बात, जो कि आपने पहले भी, आई एम सॉरी मैंने इसको थोड़ा नहीं, हमारी तो कोशिश ये है कि आइडेंटिफिकेशन भी करें। वी आर बीइंग एजुकेटेड ऑन एआई। आई थिंक मैंने तो जो जितनी आई फील वेरी एजुकेटेड राइट नाउ एक्चुअली। but ये कि we also want to focus on recommendations as well, and we will also ask the speakers as well to give us 5 recommendations in the relevant field as well, which we will of course publish. So that is the next part of my discourse. इसी से रिलेटेड जो एक और प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान के लिए बहुत पर्टिनेंट है, दैट इज अ थ्योरी कॉल्ड डेड इंटरनेट थ्योरी। आई कैन सी हाफ ऑफ द रूम इज ऑन देयर फोन्स राइट नाउ। Yes. आधा रूम जो है इस टाइम पे फोन यूज कर रहे हैं, राइट? वी ऑल यूज आवर फोन्स ऑन अ डेली बेसिस, और इस टाइम पे हमारा जो फोन का यूजेज है वो काफी ज्यादा हो गया, यंगस्टर्स में तो बहुत ज्यादा है। Right. डेड इंटरनेट थ्योरी ये कहती है कि अराउंड 99% ऑफ द इंटरनेट बाय 2027 is going to be dead. It is going to be operated by AI. तो जो चीजें आप अपने इंटरनेट पे देखते हैं, जो आपकी फीड में आती हैं, जो आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, जो चीजें आपको फीड में सामने नजर आती हैं, वो ऑलरेडी आपके पास आ रही हैं बिकॉज ऑफ AI एल्गोरिथम्स। ये तमाम बिग टेक कंपनीज जो हैं वो आपको मैनेज करने के लिए, आपको अपनी चीजें सेल करने के लिए AI का यूज करती हैं। There is a very famous quote by Edward Tuff. There are only 2 industries in the world who call their customers as users. One is the drug industry, and second is the big tech industry. Big tech industry. So if you are not paying for the product, if you are not paying for the services of Facebook and Snapchat and Instagram, it means that you are the product. सर ने डेटा प्राइवेसी की बात की। आप सब लोगों का डेटा जो है, it's constantly being monitored by AI algorithms, smart AI algorithms. These AI algorithms know you better than you know yourself. They can predict when you are going to get married. They are going to predict when you are going to get divorced. They are going to predict what your medical condition is right now, based on all the data that they are collecting on you on a daily basis. So dead internet theory ये कहती है कि by 2027 around 99% of the content that we watch online or that we consume online is going to be generated or managed by AI. बैड बॉट रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट आती है, परवा एक इंस्टीट्यूशन है जो हर साल बैड बॉट रिपोर्ट पब्लिश करता है। अकॉर्डिंग टू देयर एस्टिमेट्स, back in 2023, around 56% of the content online is already AI. So when we say artificial intelligence is coming, it's not something of the future. बहुत बाद की बात नहीं है, it's here, it's right now. So we need to have these discussions right now. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में why does it matter? Imagine आपके पास political discourse आ रहा है, आपकी न्यूज फीड में political content आ रहा है, पोस्ट आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं जो आपको बता रही है कि कहीं पे कोई वाकया हो गया जो पोलिटिकल नेचर है। आप उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, आप अपना एक पॉलिटिकल ओपिनियन बना लेते हैं, आपकी वोटर बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, द वे यू परसीव योर वर्ल्ड वो उसके इम्पैक्ट करता है। बाद में इट टर्न्स आउट कि पूरी की पूरी पोस्ट या तो एआई ने बनाई थी या एआई ने मैनेज करके आपके सामने आपको दिखाई थी। इट हैज ऑलरेडी हैपेंड बैक इन 2016 यूएस के अंदर कैम्ब्रिज एनालिटिका का आई थिंक आप सबने बिल्कुल, वी हैव हर्ड अबाउट these elections being manipulated through yes. So प्रॉब्लम इस टाइम पे है एक तो अवेयरनेस का, और दूसरा प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर का। फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान where we have 240 million people residing in a very small part of or small piece of land, imagine a person sitting in a rural setting and having access to smartphones, having access to internet, and being exposed to all of the hate content or political content on their mobile phone, and then forming an opinion on the basis of that, and not even understanding कि AI होता क्या है, या AI generated जो टेक्स्ट हैं, ये जनरेटिव AI किस तरह से आपको टेक्स्ट, वीडियोस, पिक्चर्स बना के दिखा सकते हैं। मेजॉरिटी हमारी जो है पॉपुलेशन की आज भी रूरल सेटिंग में रिजाइड करती है।
तो सोशल अनरेस्ट वहां से आता है, पहली बात। दूसरी बात, न्यू मार्क्सिज्म की जो मैं बात कर रहा था, कि पहले तो ये था कि मशीन्स आपके साथ इंटीग्रेट हो गई, अब ये मशीन्स वो हैं जो कि कॉग्निटिव डोमेन में आपको कम्पीट कर रही हैं। तो फर्स्ट टाइम आपके पास एक ऐसी वर्कफोर्स होगी विच इज नॉट ओनली जॉबलेस बट ऑल्सो इररेलेवेंट, क्योंकि अब आपको उनकी जरूरत ही नहीं है, राइट? Right. रिकमेंडेशंस, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस? बिल्कुल इसको रेगुलेट किया जा सकता है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, 2-4 स्टेप्स हैं जिनको अगर हम अभी से डिप्लॉय कर दें। आई एम नॉट ऑफ द व्यू के लेट इट बी डेवलप्ड ऑन इट्स ओन पेस, क्योंकि अगर वो करने दिया गया तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2 years or 3 years, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ डेकेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंचुरीज। आपको बता रहा हूँ कि 2027 तक एजीआई आ जाएगा, 2027 तक 99% इंटरनेट जो है वो डेड हो जाएगा। सो व्हाट डू वी नीड टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, any AI generated political content must carry a watermark. अच्छा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। AI के साथ जब आप बात कर रहे हो या AI के साथ कब जब भी कोई इंसान इंटरेक्ट कर रहा हो, इट शुड आइडेंटिफाई इटसेल्फ एज एन AI. इट शुड आइडेंटिफाई इटसेल्फ दैट यू आर राइट नाउ टॉकिंग टू एन AI सिस्टम। जब भी आपके सामने कोई AI बेस्ड टेक्स्ट आता है, वीडियो आती है या कोई भी किसी किस्म का कंटेंट आता है जो कि AI से जनरेट हुआ है, इट शुड हैव अ वाटरमार्क और अ डिस्क्लेमर। अब ये कौन करेगा? ये बिग टेक कंपनीज करेंगी। बिग टेक कंपनीज के साथ गवर्नमेंट शुड हैव दीज सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शंस एंड दीज सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशंस। कि पाकिस्तान में अगर इस तरह का कंटेंट आपने दिखाना है या पाकिस्तान में अगर आपने ऑपरेट करना है, देन दीज आर द ग्राउंड रूल्स दैट वी नीड टू हैव फॉर आवर ओन सेफ्टी, फॉर आवर ओन पॉपुलेशन। एक चीज। दूसरा, गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू डेवलप सिस्टम्स वेयर इट कुड कीप इन चेक द बॉट बेस्ड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स बॉट बेस्ड लास्ट इलेक्शन में भी हुई है। आई हैव रिसेंटली रिटन अ पेपर ऑन दिस, दैट इंटरनेट थ्योरी ने किस तरह से पाकिस्तान के यंग माइंड्स को इम्पैक्ट किया है, उसके ऊपर मैंने कुछ सर्वेस किए थे, और जिस तरह सोशल पे बैठे उनके साथ इंटरेक्ट करके उसके रिजल्ट्स कुछ अर्से में पब्लिश हो जाएंगे। देन एस्टैब्लिश क्रेडिबल फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म्स। फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई चीज न्यूज सर्कुलेट होती है तो क्रेडिबल फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म हो जहाँ पे आपके यूजर्स जा सकें और जाके चेक कर सकें कि वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। एंड दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग इन EU, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन US एज वेल। राइट। एक दो और रिकमेंडेशन है। क्रिमिनलाइज डीप फेक वीडियोस दैट फॉल्सली डिपिक्ट पब्लिक फिगर्स। किसी भी पब्लिक फिगर की अगर डीप फेक वीडियो आती है, ऑडियो आती है, उसको क्रिमिनलाइज होना चाहिए। सिर्फ उसको कंडेम नहीं करना चाहिए, FI इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, साइबर क्राइम उसके ऊपर काम करते हैं, बट क्रिमिनलाइजेशन की जरूरत है। डेवलप AI ड्रिवन थ्रेट डिटेक्शन, जो थ्रेट डिटेक्शन डिफेंस की जो बात है, बिल्कुल उसको डिप्लॉय करें, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इफ एनीथिंग इट इज गोइंग टू गिव अस एन एज, इट इज गोइंग टू गिव अस एन एडवांटेज फॉर डिटेक्शन ऑफ थ्रेट, बट देयर इज अ नीड टू इंश्योर ह्यूमन ओवरसाइट इन नेशनल सिक्योरिटी DCR। ह्यूमन ओवरसाइट के बगैर नहीं हो सकता। ह्यूमन ओवरसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट।